हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की सीरीज़। प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2019 का ये पेपर है जिसमें हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट उसकी सीरीज़ जो है वो आज हम करेंगे। उसके क्वेश्चन है 91 से लेकर 120 तक। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सामने फर्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। And this is the remaining paragraph. Let's start with question number 91. So first question is, what makes the earth forests of Tholing and Saparang look amazing? First is the ruins on the banks of the Satluj. The ruins on the banks of the Satluj. Second is abundance of flora and fauna. Third, cool breeze that makes people feel drowsy. Fourth, pillars formed by rocks resembling a forest. So इसका फर्स्ट राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन है, पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिसेंबलिंग अ फॉरेस्ट। क्वेश्चन इज 92nd question is, Langchen Khambab is a boon for the north of India because it is a major source of water supply and power generation. Second, it brings along with it mountain, soil and minerals. Third, the prosperity of the whole of India depends on it. And fourth is, it abounds in aquatic animals. So इसका right answer is first है, it is a major source of water supply and power generation. Now next question is 93rd question. Read the following sentences. A. Kangri Karchok is a holy book of Tibetans. B. Langchen Khambab is responsible for rich cultivation of various types of fruits in the Himachal Pradesh. तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है A is true, B is false. Second, B is true, A is false. Third, both A and B are true. And fourth, both A and B are false. So इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, both A and B are true. Next question is, which one of the following word is most similar in the meaning to the word gigantic as used in the passage para number 4? Terrifying, high, formidable, huge. So इसका right answer है fourth, huge. Which one of the following word is the most opposite in the meaning to the word sacred as used in the passage para number 1? फर्स्ट इज़ प्योर, सेकेंड इज़ नोबल, थर्ड इज़ अनहोली, फोर्थ इज़ मोरल. सो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, अनहोली. सो नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? फर्स्ट, आई एम नॉट. बी पार्ट, इन बेस्ट पोजिशन. सी, टू एडवाइस यू. डी, इन दिस मैटर. तो ये पूरा सेंटेंस जो है, आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइस यू इन दिस मैटर, इनमें ए, बी और सी एंड डी, इन चारों ऑप्शंस में से, चार पार्ट्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें गलती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी, बेस्ट पोजीशन, इन बेस्ट पोजीशन. यहाँ पर जो है एरर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन. तो हम सेकंड को चूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आई डोंट नो वाई ही इज़ सो होस्टाइल टू मी. सो वाई, वट इज़ वाई? एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन और प्रोनाउन. So its right option is second, adverb. So next 98 question. Lake Unconquerable refers to Langchen Khambab River, Lake Mansarovar, Lake Rakshatal, the Satluj River. So इसका right option is second option, Lake Mansarovar. 99 question. According to Kangri Karchok, Langchen Khambab doesn't or is not have sands of gold. Circle the Mansarovar 7 times. फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, अ कोल्ड रिवर. सो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स. जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसके बेस पर जो क्वेश्चन थे 99 तक, वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. अब हमारे सामने ये एक पोएम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 105 तक, वो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज, द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरीड, the impending death of soldiers, the house of death, a nightmarish place. So इसका right option होगा second, the impending death of soldiers. So next question is, which of the following statement is not true? तो देखिए यहाँ पर उसने not true पूछा है. तो यहाँ पर उसने not true पूछा है. The military discipline teaches the soldiers first to do and die, to obey their commander's order, to act tactfully in the battlefield, not to ask any question. तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, नॉट टू टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटलफील्ड. तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स?
courageous, disciplined, patriotic, impractical. तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, impractical. देखिए यहाँ पर पूछा था नॉट अप्लाई. So next question is name the figure of speech used in the Valley of Death. First is metaphor, second simile, third synecdoche, fourth metonymy. So इसका right option होगा first metaphor. देखिए सिमली होता है जब हम किसी की तारीफ़ करते हुए, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहते हुए हम उसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं. वहाँ पर मोस्टली जो वर्ड्स हैं एज, लाइक, वो वर्ड यूज़ किए जाते हैं. लेकिन मेटाफर जो होता है वहाँ पर किसी की तारीफ़ करते हुए जब हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम उसको एज, लाइक यानी कि किसी के साथ कंपेयर करके उसके जैसा नहीं कहते, उसको वही जो है वो उपाधि दे दी जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आप किसी की सुंदरता को आप चांद के साथ कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे? अगर तो आप सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे एज ए मून या लाइक मून. लेकिन जब आप उसको मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं तो आप उसको ही मून कह देते हैं. फॉर एग्जांपल शी इज़ ब्यूटीफुल, एज मून कहेंगे तो वो सिमली होगा. लेकिन अगर आप कहेंगे शी इज़ मून तो वो मेटाफर हो जाएगा. तो यहाँ पर उसने कहा है द वैल्यू ऑफ डेथ, उसको वैल्यू ऑफ डेथ की उपाधि दे दी है. तो दैट्स वाई इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर अप्लाई होती है. तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ मेटाफर. Next is which literacy device is used in the expression to do and die. First is assonance, alliteration, simile, personification. देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज alliteration. देखिए ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. यहाँ पर alliteration क्यों आया? क्योंकि जो हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है टू डू एंड डाई, उसमें जो एक अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है दैट इज डी. डी, डू, डी से ही डाई. तो अलिट्रेशन होता है कि जो साउंड जो होता है एक एक्सप्रेशन में जो रिपीट होता रहे बार बार, उसका साउंड जो है वो हमें पूरे एक्सप्रेशन में सुनाई देता रहे, तो उसको ही अलिट्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पर भी डी का जो साउंड है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अलिट्रेशन. नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट सेंटेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, वेटिंग फॉर देयर कमांडर्स ऑर्डर, thinking about the result of the war, seen riding fast to the enemy's territory. So इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, seen riding fast to the enemy's territory. देखिए ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो हमने एक पैराग्राफ आगे देखा था एज अ पॉइंट वो दिया हुआ था, उसके बेस पर ये सभी क्वेश्चंस थे. उसमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो ग्रामर बेस्ड थे, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया. जो पैराग्राफ बेस्ड थे वो आपको तभी सोल्व कर सकते हैं अगर आप वो पैराग्राफ पढ़ें अच्छे से और फिर समझें उसको. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे. So next is, in the multilingual classroom, learner can interact in the medium of instructions followed by the school in their own language and can be mix of words from more than one language, only in the language prescribed in the 3 language formula. Fourth is in the language with which the teacher is familiar. So इसका right option होगा second, in their own language and can be mix of words from more than one language. देखिए तभी उसको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहेंगे जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा सके और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी भाषाओं का यूज़ कर सकें, और इससे वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से नई नई भाषा सीख कर जो वर्ड्स है एक दूसरे के साथ मिक्स भी कर सकते हैं. सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन. Diagnostic tests are administered to find out deficiencies of the students with a view to planning remedies, assess the suitability of a candidate for a specific program, test the language proficiency of students for providing them jobs, and fourth is judge the students capabilities. So इसका right option होगा first, that is find out the deficiencies of the students with a view to planning remedies. देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, डायग्नोज करना स्टूडेंट को, वो इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो डेफिशिएंसीज, उसमें जो कमी है उसको पता लगाया जा सके और उसको उसके रिलेटेड रेमेडीज़ जो है वो दी जा सकें. सो 107 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन. देखिए डायग्नोस्टिक वर्ड से पता चल रहा है, ये जो वर्ड है डायग्नोज, जैसे एक डॉक्टर डायग्नोज करता है अपने पेशेंट को, वो पता लगाता है कि उसमें जो बीमारी है, उसमें जो कमियां हैं या फिर कह सकते हैं उसमें जो खराबी है वो कहाँ पर है, और फिर उसके रिलेटेड वो अपनी बीमारी को समझ कर, उस पेशेंट की जो बीमारी है उसको समझ कर फिर वो इलाज करता है, ट्रीट करता है, उसको दवाइयाँ देता है. तो वैसे ही एक टीचर भी करता है, वो डायग्नोज टेस्ट करता है बच्चे का ताकि वो उसकी डेफिशिएंसीज को पता लगा सके और फिर उसके रिलेटेड रेमेडीज़ को प्लान कर सके. तो ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो नेक्स्ट करते हैं हम 108th क्वेश्चन. स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, रीडिंग एंड राइटिंग ओनली. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है फोर्थ. जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो रीडिंग एंड राइटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़. डज नॉट come under meaning based activities. First is interacting with the text, using previous knowledge, reading the text and then narrating the same to peers. Fourth is reading out every word aloud and translating it. तो बिल्कुल मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में जो फोर्थ है
वो नहीं आता है, डज नॉट इंक्लूडेड रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. So next question is dash comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text. Inferential, global, local, transactional. तो देखिए कौन सा कॉम्प्रीहेंशन है, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, लोकल. लोकल कॉम्प्रीहेंशन जो होता है इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. लोकल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ना, इतने ध्यान से समझकर पढ़ना, एक छोटे उस रीडिंग के एक पीस को, एक पैराग्राफ को या कुछ जो लाइन्स को इतने ध्यान से पढ़ना कि आप उसमें से कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं. जब आप ऐसे रीडिंग करते हैं उसको कहते हैं लोकल कॉम्प्रीहेंशन. So next is 111th question. It is a type of writing in which the teacher provides the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of the ideas to the learners. So first is controlled writing, second is guided writing, third is free writing and fourth is product writing. So इसका जो right answer है that is guided writing. देखिए इसमें टीचर जो है वो गाइड कर रहा है. इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन. जो टीचर सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, कंटिन्यूसली वो फीडबैक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ सब में जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड गाइडेड राइटिंग. Next is a teacher asks the student of class 5th to read the text thoroughly. Then she asks them to answer the questions with reference to the context. In this process, she is encouraging students for skimming, scanning, intensive reading, extensive reading. देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ थर्ड, इंटेंसिव रीडिंग. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक टीचर है जो 5th क्लास के स्टूडेंट को जो है वो कह रही है कि वो रीड करे थोरोली. देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू दैट कॉन्टेक्स्ट. तो जितना उसने पढ़ा है उसके रेफरेंस में वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है और साथ में उसको बच्चे को आंसर करने के लिए कह रही है. इन दिस प्रोसेस शी इज़ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर इंटेंसिव रीडिंग. वो उसको इंटेंसिव रीडिंग करने के लिए, यानी कि एक पैराग्राफ या जितना भी उसने दिया है पढ़ने के लिए, उसको थोरोली ध्यान से पढ़ने के लिए कह रही है और उसको ध्यान से पढ़कर उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बच्चों को कह रही है. इसीलिए वो कह रही है कि उसके उस पैराग्राफ से बेस पर जब वो क्वेश्चन पूछता है टीचर, तब जो टीचर है उसके वो चाहता है कि बच्चा उसको आंसर कर सके. देखिए यही चीज़ हमने 110th क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग. जब ध्यान से कोई रीडिंग की जाती है और उसमें से स्पेशल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो रीडिंग की जाती है, तब उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग. नेक्स्ट इज द टर्म कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद. सो इसका राइट ऑप्शन है स्टीफन क्रशन, क्योंकि ये वर्ड इन्हीं से रिलेट करता है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग? कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब स्किल नहीं है रीडिंग की? तो बिल्कुल इसका आंसर है फोर्थ, ट्रांसक्रिप्टिंग. 115th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन? फर्स्ट इज लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक. Second, giving them an opportunity to express their feelings and ideas. Third, asking closed-ended questions. Fourth is organized discussion on a given topic. तो उसने बोला है लीस्ट इम्पोर्टेंट. तो देखिए लिसनिंग पेशेंटली चिल्ड्रंस टॉक, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ गिवन टॉपिक. तो बिल्कुल चारों ऑप्शंस को पढ़कर हम कह सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चों को ध्यान से सुनना दैट इज़ द राइट ऑप्शन. कि हम उससे क्या होता है उसकी स्पीकिंग स्किल के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये वे हो सकता है. उनको अपने फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी देना, दैट इज़ आल्सो बेस्ट मेथड. डिस्कशंस रखना, दैट इज़ आल्सो बेस्ट मेथड. लेकिन एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन देना, क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका आंसर जो है बिल्कुल जो है वो हाँ या ना में या बहुत लिमिटेड आंसर होता है, यानी कि उसका एक ही आंसर हो सकता है, बस वही और उतना ही आंसर बनता है. इससे ज़्यादा वो उसमें अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता. दैट इज़ कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन. और जैसे ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होती. तो इसीलिए इट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो वे है स्पीकिंग स्किल को एनहांस करने का, वो थर्ड ऑप्शन है. सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ओनली. So next question is, at primary level, literature is helpful in developing language of learner as it encourages the learner to complete the worksheets based on it. It is enthusiastic material covering various genres. It develops teachers' interpretive, creative and critical abilities. It is a good basis for the only expansion of vocabulary. So इसका right option होगा second. It is enthusiastic material covering various genres.
Next is a teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given to the worksheet is a speaking task, writing task, close test और open test. बिल्कुल ये तो आंसर बहुत ही साफ है. इसका आंसर जो होगा थर्ड क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो होता है वो ऐसे ही होता है कि एक फिक्स्ड नंबर का जो वर्ड है गैप्स वो दिए जाते हैं और बाद में उसको फिल करने के लिए कहा जाता है. दैट इज़ अ क्लोज टेस्ट. Next is language is a arbitrary, means that something is determined by judgment and for a specific reason. It is based on a valid reason and not on a chance. There is strong relation between the words of a language and their meaning. There is no inherent relation between the words of language and their meaning. So इसका right option होगा fourth. There is no inherent relation between the words of language and their meaning. Next is the teacher observed that Parveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called team teaching, counseling, scaffolding, socialization. तो इसका आंसर हमें सबको पता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग. थर्ड इज द राइट आंसर. बिकॉज स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि अपने से बड़े जो अपने से बड़ा हो, यानी कि अडल्ट हो, या फिर बड़ा होने का मतलब वो आपसे कैपेबिलिटीज़ में बड़ा हो, चाहे वो आपका पीयर ग्रुप में आपका कोई साथी हो सकता है या फिर कोई अडल्ट हो सकता है. तो उससे अगर आप यानी कि वो चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो सहायता लेता है, वो उसकी मदद से, कोई उसकी गाइडेंस से जो काम करता है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग. क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करना, गाइडेंस देना. द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स. ठीक है, उसमें आप ध्यान रखिए, उसमें क्वेश्चन में नोट पूछा है. डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग. तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. बिल्कुल किसी भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज का, किसी भी हमारी जो टीचिंग का पर्पस ये हो ही नहीं सकता कि वो आंसर्स को मेमोराइज कर ले. तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन. तो ये थी इंग्लिश की सीरीज़. हमने इंग्लिश के वो क्वेश्चंस किए जो दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में लैंग्वेज एज अ फर्स्ट आए थे. तो इंग्लिश की सीरीज़ के ये 30 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं. नेक्स्ट हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो इंग्लिश के एज अ सेकंड लैंग्वेज आए थे.